Hello friends, welcome to the online class of Advanced Corporate Accounting, and we are continuing with our topic Amalgamation of Companies. I am Shalini Arora from Department of Commerce, Government National College, Sirsa. So far we have learnt about amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of purchase, and different methods of calculating purchase consideration. Today we are going to start with accounting treatment in the books of transfer company. So in today's class we will study about what entries or what accounting treatment are to be done in the books of transfer company. So first of all, I would like to tell you about transfer company and transferee company just to freshen you up. Transfer company is that company which is going to be amalgamated, and transferee company is that company into which a company is amalgamated. Transfer company is no longer going to exist. It ceases to exist as a separate entity. Now whatever belongs to the transfer company will in future belong to transferee company. Okay, so normally the accounting treatment is same whether amalgamation is in the nature of merger or it is in the nature of purchase. There is no difference. Okay, and you very well know that merger and purchase, what is the difference between merger and purchase? There are 5 conditions. If all the 5 conditions of amalgamation are fulfilled, then it is in the nature of merger, and if any one of the condition is not fulfilled, one or more, then amalgamation is in the nature of purchase. Okay, so let's study more. Transfer company, as you already know, transfer company ceases to function, so all the accounts should be closed. Now transfer company is going to be amalgamated. It will no longer be functioning properly or functioning anymore, since it is going to be liquidated. Its existence is going to come to an end. So it is compulsory or it is necessary to close all the accounts. So when we are closing all the accounts, all assets and liabilities are transferred, and if there is in any profit or loss on the transfer, it should be transferred to realization account. So we will prepare realization account, and whatever profit or loss will be there on the transfer of assets to whatever profit or loss will be there on the closing of accounts, that should be transferred to realization account. Means ये कहने का मतलब है कि अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, और क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कंपनी की, तो ट्रांसफ़र कंपनी वो कंपनी है जो अब फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ना ही वो अपनी सेपरेट एंटिटी की तरह फंक्शन करेगी. तो उसके जो भी खाते हैं, जो भी अकाउंट्स हैं, उनको हमने क्या करना है, क्लोज. चाहे वो एसेट्स के हैं, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के हैं, चाहे वो रिज़र्व, सरप्लस, जो कुछ भी है, उन सबको हमें क्या करना होता है, क्लोज. और जो उनको क्लोज करने पे हमें प्रॉफिट या लॉस होता है, उसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, रियलाइजेशन अकाउंट. तो अब हम इसकी बात करेंगे. अब हम बात करेंगे एंट्रीज़ की, कि एंट्रीज़ कौन कौन सी होती हैं बुक्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी. तो फर्स्ट एंट्री जो पास होती है वो होती है एसेट्स के लिए, एसेट्स अकाउंट क्लोज करने के लिए. तो एंट्री विल बी नंबर 1. हमने सारी बुक वैल्यूज़ पे लेनी आती है एंट्री. ये हमने कंडीशन की भी थी, 5 कंडीशंस में से एक ये कंडीशन थी. तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स. मतलब एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. तो रियलाइजेशन अकाउंट में सन्ड्री एसेट्स को हमने क्या कर देना है, डेबिट. अब यहाँ पे आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है. नंबर 1, अगर वो कैश और बैंक नहीं टेक ओवर करते तो आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करोगे. नंबर 2, फिक्टिशियस एसेट्स को भी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना. नंबर 1, कैश एंड बैंक इफ़ नॉट टेकन will not be transferred to realization account.
नंबर 2, फिक्टिशियस एसेट्स को भी हमने ट्रांसफ़र नहीं करना होता, विल ऑल्सो नॉट बी। तो ये जाएंगे कहाँ फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स हम शेयर होल्डर्स को देंगे। ओके, उसके बाद है, चाहे कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं, चाहे कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, उनको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाना होता है जिस वैल्यू पे वो बैलेंस शीट में अपीयर करते हैं। चाहे गुडविल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ट्रेडमार्क्स है, पेटेंट राइट्स है, उन सबको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है एट देयर बुक वैल्यू। और अगर किसी एसेट के अगेंस्ट प्रोविज़न है तो हमने प्रोविज़न को ग्रॉस रियलाइजेशन अकाउंट में तो उसको ग्रॉस लेके जाना है, बट उसकी प्रोविज़न को हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? अलग से लाइबिलिटी साइड पे। ओके, नाउ सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री किसके लिए होगी? लाइबिलिटीज़ के लिए। तो लाइबिलिटीज़ को हम क्या करेंगे? डेबिट liabilities account डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप सबको पता है लाइबिलिटीज़ का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसलिए ये रियलाइजेशन अकाउंट में भी क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। और यहाँ पे भी आपने किन बातों का ध्यान रखना है? नंबर 1, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को हम टेक ओवर करेंगे। ओके, तो उनको भी हम ये एज्यूम नहीं करेंगे वो इसमें इंक्लूड होंगी। और जितने भी हमारे एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं वो हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वो किसके होते हैं? शेयर होल्डर्स के, इसलिए हम उनको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। accumulated reserves will not be transferred to realization account. ओके, और अगर किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई फंड या कुछ ऐसा है कि कोई पेमेंट करनी है, तो पहले हम उसकी पेमेंट करेंगे और बाकी लाइबिलिटी को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। नाउ थर्ड एंट्री, परचेज कंसिडरेशन ड्यू। आपको ये पहले भी पता है, जो हमने शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ किस फॉर्म में करनी है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में, इक्विटी शेयर्स में। और अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स रह जाते हैं तो उसके लिए हम क्या पे करेंगे? कैश। तो सबसे फर्स्ट एंट्री जो है, थर्ड एंट्री है, दैट इज़ परचेज कंसिडरेशन ड्यू। तो एंट्री विल बी, क्योंकि हमें ट्रांसफरी कंपनी पे कर रही है तो हम ट्रांसफरी कंपनी को क्या कर देंगे? डेबिट द गिवर टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम सिर्फ ड्यू कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। ओके, वो पे कैसे करती है वो हम नेक्स्ट एंट्री में करेंगे फॉर रिसीविंग। अब हम क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन को रिसीव करेंगे। अगर उन्होंने शेयर्स दिए हैं तो शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, डेबिटेड। बैंक अकाउंट, अगर वो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के बदले में कैश दे रहे हैं, टू ट्रांसफरी कंपनी। ओके, इज दैट क्लियर? अभी तक हमने 4 एंट्रीज की बात की है। नंबर 1, एसेट्स टेक ओवर करने के लिए, मैं यहाँ पे दोबारा लिख रही हूँ, एसेट्स टेक ओवर करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ओके, उसके बाद लाइबिलिटीज़ टेक ओवर करने के लिए लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड एंट्री है परचेज कंसिडरेशन ड्यू, ट्रांसफरी कंपनी डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और जब उनको परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो जाएगी तो जिस तरह से परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगी, शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड,
टू ट्रांसफरी कंपनी। जितने शेयर्स ट्रांसफरी कंपनी देगी वो हमने डेबिट कर लेना है, और जो फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के बदले में कैश मिलेगा उसको डेबिट करके, और टोटल अमाउंट के साथ हम ट्रांसफरी कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। नाउ फिफ्थ एंट्री इज सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी। क्या होता है, कई बार ट्रांसफरी कंपनी एसेट्स नहीं लेती तो हम उसको मार्केट में सेल करते हैं, तो उसके लिए क्या एंट्री होती है, नंबर 1, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अगर उसका लॉस हो रहा है तो हम रियलाइजेशन को क्या करेंगे, डेबिट, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, इन केस ऑफ लॉस ऑन सेल टू एसेट्स, जिस भी एसेट को हमने सेल किया है। रियलाइजेशन डेबिट हुआ इन केस ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट होगा तो हम रियलाइजेशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ओके, नाउ सिक्स्थ एंट्री, सपोज उसने कोई लायबिलिटी टेक ओवर नहीं की, इन केस लायबिलिटी इज नॉट taken over by ट्रांसफरी कंपनी, तो क्या होगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, अगर हमने ज़्यादा पेमेंट की है, एक्सेस पेमेंट की है तो आएगा टू बैंक। ओके, जितनी भी लायबिलिटीज़ थी, अगर हमने लायबिलिटीज़ 1000 की थी, हमने उसको 1100 पे किया, 1100 हमने टोटल उसको कितनी पेमेंट कर दी, 1100 की। नेक्स्ट एंट्री इज़ पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्योंकि अब हम रियलाइज़ करवा रहे हैं एसेट्स को, कंपनी इज़ लिक्विडेटिंग, तो उसके ऊपर हम खर्चा करेंगे, तो उन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, वो भी कहाँ से जाएगा, रियलाइजेशन में से, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसमें बेटा एक चीज़ याद रखनी है बच्चे की, वहाँ ट्रांसफ़र कंपनी ये पे करेगी। कई बार क्या होता है कि पहले ट्रांसफ़र कंपनी कहती है मैं बियर करूँगी, तो उसमें हम अलग से एंट्री करते हैं। अगर तो ट्रांसफरी कंपनी एक्सपेंसेस पे करती है तो कोई एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। अगर ट्रांसफ़र कंपनी डायरेक्टली पे करती है तो देयर विल बी नो एंट्री, बट अगर पहले ट्रांसफ़र कंपनी पे करती है और बाद में उसकी रीइंबर्समेंट होती है ट्रांसफरी कंपनी से, तो क्या होगा, नंबर 1, ट्रांसफरी कंपनी टू बैंक, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि बैंक वो हमें पे कर रहा है तो हम उसको, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो कौन दे रहा है, ट्रांसफरी कंपनी। ये देखो, आई एम शोइंग यू अगेन, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, ट्रांसफ़र कंपनी, तो एंट्री क्या हो जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बट समटाइम्स उनमें एग्रीमेंट होता है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं या जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हैं वो कौन बेयर करेगा, ट्रांसफरी कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी अगर तो डायरेक्टली पे कर देती है तो ट्रांसफ़र की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। बट अगर क्या होता है कि ट्रांसफ़र कंपनी पे कर देती है और बाद में क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी उसको रीइंबर्स करती है, तो पहले हमने पेमेंट कर दी, हमसे पैसे चले गए, तो एंट्री क्या करेंगे, ट्रांसफरी कंपनी डेबिटेड टू बैंक, और बाद में जब हमें वो पैसे मिलेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रांसफरी कंपनी, क्योंकि अब हमें उनकी रीइंबर्समेंट हो गई है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। हमें पे कौन कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, तो हम ट्रांसफरी कंपनी को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब कई बार क्या होता है कि बैलेंस शीट में कोई लायबिलिटी नहीं दिख रही होती, तो उसकी पेमेंट होती है, पेइंग अ लायबिलिटी
not shown in balance sheet. Realization account debited to बैंक अकाउंट। कोई हमने लाइबिलिटी पे ऑफ की है जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही थी, अचानक से राइज हो गई है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अगर अब रियलाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन है किसके लिए? शेयर होल्डर्स का अकाउंट है, जो भी पेमेंट होगी वो शेयर होल्डर्स को होगी। अगर प्रॉफिट होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर लॉस होता है, नंबर 10, इफ देयर इज अ लॉस तो एंट्री विल बी रिवर्स्ड। क्या हो जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो अगर प्रॉफिट होता है तो शेयर होल्डर्स क्रेडिट हो जाएंगे, अगर लॉस होता है तो शेयर होल्डर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट। नेक्स्ट एंट्री, अब जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को और क्या क्या मिलता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो लायबिलिटी साइड पे जितने भी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं वो सब के सब किसको दिए जाएंगे? शेयर होल्डर्स को। तो सबसे पहले उनको क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व फंड। ये एग्जाम्पल्स हैं, इसमें से कुछ भी हो सकता है। रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन, क्योंकि ये उन्हीं के हमने पैसे रोक के उन्हीं के प्रॉफिट्स में से हमने ये फंड्स बनाए होते हैं। तो अब जब कंपनी नहीं एग्जिस्ट कर रही, कंपनी को इन फंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो लास्ट में आके क्या करती है? शेयर होल्डर्स के बीच में ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड्स, वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, और भी कोई सरप्लस बैलेंस शीट में शो हो रहा है, तो ये सब कुछ किसका है? शेयर होल्डर्स का। तो ये हम किसको देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। ओके, तो लास्ट में हमने ये लायबिलिटी साइड पे इनको भी ट्रांसफ़र करना है। तो हम जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सारे के सारे किसको बिलोंग करते हैं? शेयर होल्डर्स को, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये उनको दे दिए जाएंगे। ठीक है, अब अगर उनको प्रॉफिट मिल रहा है तो उन लॉसेस भी तो उन्हीं के हैं ना, तो इसीलिए लॉसेस भी हम उनको देंगे। अगर एसेट साइड पे कुछ भी नेगेटिव बैलेंस है, कुछ भी कोई लॉस शो हो रहा है, तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है वो कम हो जाता है, तो उनको डेबिट करेंगे। सपोज़ अगर सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ओके, ये हो गया। अब हमने क्या करना है? उनको पेमेंट करनी है, फाइनल पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो जो भी उनको कैश या शेयर्स मिलने हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड, मिलना क्या है? वो रिसीव कर रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। फुली पेड शेयर्स के लिए शेयर्स, और जो फ्रैक्शनल शेयर्स है उसके लिए उनको क्या मिल जाएगा? कैश। तो बेटा ये 13 एंट्रीज़ हैं
जो किसकी बुक्स में होती हैं, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में। एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट एंट्री इज़ फॉर टेकिंग ओवर द एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं, जो भी एसेट्स हमारी लाइबिलिटीज़ रियलाइज़ होंगी वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है वो किसको जाएगा, शेयर होल्डर्स को। तो फर्स्ट एंट्री इज़ फॉर टेकिंग ओवर ऑफ एसेट्स, और उसके लिए एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। Second entry is for taking over of liabilities. Liabilities account debited to realization account. Number 3, purchase consideration due. Transferee company debited to realization account. For receiving purchase consideration, receive कैसे करेंगे, shares in transferee company, bank account debited to transferee company. Fifth entry is कई बार ट्रांसफरी कंपनी सारे एसेट्स को टेक ओवर नहीं करती, हम उनको सेल करते हैं। तो सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। नंबर 6, अगर उसने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नॉर्मली कौन बियर करता है, ट्रांसफरर कंपनी, बट ट्रांसफरी कंपनी भी उनको पे कर सकती है अगर उनका पहले से कोई एग्रीमेंट हुआ है। तो अगर ट्रांसफर कंपनी पे करती है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और अगर ट्रांसफरी कंपनी खुद पे करती है तो कोई एंट्री नहीं होगी। बट अगर पहले ट्रांसफ़र कंपनी पे कर रही है और बाद में ट्रांसफरी कंपनी उसको रीइंबर्स कर रही है, तो पहले जो पेमेंट की होती है ट्रांसफरी कंपनी डेबिटेड टू बैंक, और फिर जब उसको वापस मिलते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रांसफरी कंपनी। उसके बाद अगर कोई लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं थी बट एकदम से अराइज हो गई कि हाँ अरे भाई उसको भी तो पैसे देने हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है, सारी एंट्रीज हो चुकी हैं, तो प्रॉफिट जो रियलाइजेशन का हुआ है वो क्या हो जाएगा, किसको ट्रांसफ़र होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर रियलाइजेशन पे लॉस होता है देन इक्विटी द एंट्री विल बी रिवर्स्ड। पहले प्रॉफिट के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हो रहे थे, क्रेडिट हो रहे थे, अब लॉस के केस में इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री इज़, और क्या क्या मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लाइबिलिटी साइड पे जितने भी प्रॉफिट्स रिजर्व्स शो हो रहे हैं वो सब किसको बिलोंग करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पहले उनकी कैपिटल वापस की जाएगी, फिर उनका कोई रिजर्व में पैसा पड़ा है, कोई कंटिजेंसी फंड में पड़ा है, कोई डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में पड़ा है, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड में पड़ा है, कोई इंश्योरेंस फंड पड़ा है, कोई सरप्लस का पॉजिटिव बैलेंस है। दीज ऑल आर प्रॉफिट्स एंड दे ऑल बिलोंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट है तो लॉसेस भी उन्हीं के हैं, तो उनको लॉसेस भी मिलेंगे। तो अब इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट हो जाएंगे और उनको क्या क्या मिलेगा, अगर सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस है, शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, या कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स हमें दिखाई दे रहा है। लास्ट एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफ़र कंपनी इज़, जो फाइनल पेमेंट मिलनी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उनकी कंपनी बंद होने जा रही है, तो उसके लिए उनको जो भी अमाउंट मिलनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कैश फुली पेड मिलेंगे वो, और अगर फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स के लिए उनको कोई कैश मिलता है तो ये उसकी एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। तो दीज आर इन ऑल 13 एंट्रीज विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी करेंगे। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो इन्हीं एंट्रीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द नंबर दैट वी हैव टू पास इन ऑल 13 एंट्रीज। ज़रूरी नहीं होता हर बार 13 एंट्रीज़ हो, कई बार सारी लाइबिलिटीज़ टेक ओवर नहीं की होती या सारी की सारी टेक ओवर कर ली जाती हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है। बट इन ऑल अगर क्वेश्चन में सभी पॉइंट्स कवर अप होते हैं तो देन
These 13 entries are to be passed in the books of transfer company. That's all for today. Thank you.